Hello everyone, this is Siraj Khan and I welcome you all on behalf of Professor Ram Meghe College of Engineering and Management, Barnera. In today's lecture, we are going to start Fourier transform. For IT branch, it is the second part of third unit. For IT branch, third unit, it is divided into two parts. First, part A is based on applications of Laplace transform, and part B, it is Fourier transform. So before moving to the Fourier transform, first we will see Fourier integral. And after that, we will move to the Fourier transform. So Fourier integral of the function f of x. Fourier integral of the function f of x is defined and denoted as f of x, it is equal to 1 upon pi integration 0 to infinity, integration minus infinity to plus infinity, f of t into cos of lambda in bracket t minus x dt d lambda. So this is the main formula of Fourier integral. But whenever we are going to solve a problem, or whenever we are going to find Fourier integral of some function, we are not going to use this main formula. The reason behind is that the limits of integration in one of the integral are minus infinity to plus infinity. Limits जो यहाँ पे लिखे है ये minus infinity to plus infinity है. And if we solve the integration and then apply the limits, so upper limit it is plus infinity, lower limit it is minus infinity, then somewhere we will not get the finite result. There is possibility that we will get the solution as infinity, जो हमें नहीं चाहिए. We need some finite result. So due to this limits minus infinity to plus infinity, we are not going to use this main formula of Fourier integral for solving the problems. So what next? अभी ये formula तो हमें use करना नहीं है. So for actual problems हम कैसे solve करेंगे? So for that we have to check the function either it is even or odd. We are having two other deductions of Fourier integral. One is Fourier cosine integral, other is Fourier sine integral. तो उसके लिए पहले हमें even odd का concept पता होना चाहिए कि what is even function, what is odd function. So even function. A function f of x is said to be even function if f of x it is equal to f of minus x, it is equal to again f of x. Means what? ये तो सिर्फ मैंने नोटेशन यहाँ पे लिख दिया. But what is the meaning of this? अगर हमें चेक करना है कि either given function it is even or odd. So for that we have to replace x by minus x in that function. x को minus x से आप replace कर दो complete function के अंदर. और अगर वैल्यू सेम वही आता है जो फंक्शन का वैल्यू है f of x as it is without any change, then this function is called as even function. For example, suppose we are having f of x equal to cos x, then replace x by minus x, तो ये हो जाएगा f of minus x, it is equal to cos of minus x. And we know that value of cos of minus x it is as it is cos x. So हमने क्या किया कि फंक्शन के अंदर x को minus x से रिप्लेस किया, but we are getting the same value. जो f of x का वैल्यू था वही वैल्यू f of minus x का है without any change. It means that here f of x it is same as f of minus x, and after replacing x by minus x we are getting the same function, so it is even function. Therefore it is even function. Second example, if f of x it is equal to suppose x to the power 4, then replace x by minus x in the function f of minus x, it will be minus x bracket to the power 4, and minus x bracket to the power 4 it will be as it is x to the power 4 because we are having even power it is 4 even है, power 2 4 6 8 even power अगर रहते हैं तो minus का plus हो जाएगा.
So after replacing x by minus x, we are getting same value. जो f of x का वैल्यू था x to the power 4, वही वैल्यू आ रहा है f of minus x का x to the power 4. मीन्स अगेन f of x के अंदर अगर हमने माइनस x अगर रिप्लेस किया तो वी आर गेटिंग सेम वैल्यू, जो फंक्शन का वैल्यू था वही आ गया. सो देयरफॉर इट इज ऑल्सो इवन फंक्शन. ठीक है. नेक्स्ट ऑड फंक्शन. So if f of x it is equal to f of minus x, it is equal to minus of f of x, means what? मेथड वही है. इवन ऑड अगर चेक करना है तो फंक्शन के अंदर x को हमें माइनस x से रिप्लेस करना है. बट अब यहाँ पे चेंज किया हुआ कि माइनस x से रिप्लेस करने के बाद में जो वैल्यू आ रहा है इट इज माइनस ऑफ f of x, मीन्स जो गिवन फंक्शन था उसका भी यहाँ पे नेगेटिव हो गया. माइनस ऑफ f of x गिवन फंक्शन का यहाँ पे नेगेटिव हो गया. अब ये नेगेटिव हो गया, इट मीन्स दैट नाउ इट इज ऑड फंक्शन. नाउ इट इज ऑड फंक्शन. अगर सेम वैल्यू f of x अगर आता है तो इवन, और अगर माइनस ऑफ f of x अगर आता है तो देन इट इज ऑड फंक्शन. फॉर एग्जाम्पल, if f of x it is equal to sin x, then replace x by minus x. फंक्शन में x की जगह पे हमें माइनस x रिप्लेस करना है, तो sin x it will become sin of minus x, and we know that sin of minus x it is minus sin x. sin फंक्शन में से माइनस बाहर आता है, cos फंक्शन में माइनस वहीं पे एडजस्ट हो जाएगा. तो sin of minus x it is minus of sin x, मीन्स गिवन फंक्शन जो था वो प्लस f of x था. अभी x को माइनस x से हमने रिप्लेस किया फंक्शन के अंदर, तो ये माइनस sin x आ गया. माइनस sin x मीन्स इट इज माइनस ऑफ f of x. सो इट इज ऑड फंक्शन. इट इज ऑड फंक्शन. ठीक है. सिमिलरली नेक्स्ट एग्जांपल, if f of x it is equal to x cube, then f of minus x it is equal to minus x bracket cube. माइनस x का पावर 3 अगर लिया मीन्स माइनस x इंटू माइनस x इंटू माइनस x 3 टाइम्स अगर मल्टीप्लाई किया तो ये नेगेटिव रहेगा. इट विल बी माइनस ऑफ x क्यूब. ऑड पावर अगर रहा तो माइनस बाहर आएगा. इवन पावर अगर आता है पावर 2, पावर 4, पावर 6, तो वो माइनस का प्लस हो जाएगा. सो गिवन फंक्शन इट इज प्लस एक्स क्यूब. हमने x की जगह पे माइनस x अगर पुट किया तो वी आर गेटिंग इट एज माइनस एक्स क्यूब, मींस व्हिच इज नथिंग बट माइनस ऑफ f of x. इट मींस दैट it is also example of odd function. ठीक है. So in this way we have to check that either given function it is even or given function it is odd, and on the basis of that we will use the formula of Fourier cosine integral or formula of Fourier sine integral. One more example I am showing it to you here. If f of x it is equal to 1 for mod x less than equal to 1 and it is equal to 0 for mod x greater than 1. Now it is even or odd, ये हमें चेक करना है. अब हमें मेथड तो पता है कि x को माइनस x से अगर रिप्लेस किया तो फंक्शन सेम वैल्यू एज इट इज आना चाहिए. अब यहाँ तो फंक्शन के अंदर x है ही नहीं, फंक्शन के दो वैल्यूज है. उसमें से फंक्शन का फर्स्ट वैल्यू इट इज 1, सेकंड वैल्यू इट इज 0. मींस फंक्शन के जो वैल्यूज है उसमें x है ही नहीं. अगर हमने x को माइनस x से रिप्लेस किया तो ये तो एज इट इज रहेगा 1 और 0. अब ये एज इट इज आ रहा है, मींस वी कैन से दैट इट इज इवन. बट फाइनली फिर भी इससे फाइनल डिसीजन मींस फाइनली क्या कैसे चेक करोगे कि ये इवन है ये ऑड है. फंक्शन का वैल्यू कांस्टेंट है, x को माइनस x से रिप्लेस किया तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. बट वी आर हैविंग हियर लिमिट्स. दो कंडीशंस गिवन है, mod x लेस देन इक्वल टू 1, mod x ग्रेटर देन 1. सो जब भी हम फंक्शन का वैल्यू में कोई चेंज करोगे तो ये लिमिट के अंदर भी हमें चेंज करना होगा. मींस फर्स्ट जो लिमिट है वी आर रिप्लेसिंग x बाय माइनस x, तो f ऑफ माइनस x इट विल बी फर्स्ट वैल्यू तो एज इट इज 1 रहेगा. बट यहाँ पे ये mod x जो लिखा है अभी हो जाएगा माइनस ऑफ mod x लेस देन इक्वल टू 1. सेकंड वैल्यू फंक्शन का 0, ये भी एज इट इज रहेगा.
बट ये हो जाएगा माइनस ऑफ मॉड एक्स ग्रेटर देन 1। एंड वी नो डैट के मॉडुलस जब हम लेते हैं तो मॉड के अंदर माइनस वैल्यू भी अगर रहा तो वो भी प्लस हो जाएगा, मीन्स ये एज इट इज रहेगा मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू 1। सेम मॉड के अंदर माइनस वैल्यू जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये एज इट इज रहेगा मॉड एक्स ग्रेटर देन 1। मीन्स लिमिट में कुछ चेंज नहीं हुआ, फंक्शन में तो कुछ चेंज नहीं था, 1 0 था, लिमिट जो थी वो भी एज इट इज है मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू 1 मॉड एक्स ग्रेटर देन 1। मीन्स कुछ भी चेंज नहीं है। मीन्स व्हाट आई वांट टू से कि फंक्शन के वैल्यू जब भी चेंज करोगे तो उसके साथ अगर लिमिट गिवन है तो वो भी आपको चेंज करना है, और लिमिट चेंज करने के बाद सेम लिमिट आना चाहिए। अगर ऐसे नहीं चलेगा कि लिमिट चेंज हो गया, सिर्फ क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी कि इंटरचेंज हो सकता है, ऊपर वैल्यू 1 है तो नीचे सपोज 1 आएगा और ऊपर 0 चली जाएगा, ऐसे इंटरचेंज कहीं पे हो सकता है, बट वी शुड गेट सेम वैल्यू, सो देयरफॉर इट इज इवन फंक्शन। नेक्स्ट एग्जांपल, f of x it is equal to pi by 2 sin x for 0 less than equal to x less than equal to pi, and second value of function it is 0 for x greater than pi। अब ये चेक करना है कि ये इवन है या फिर ऑड है, तो फंक्शन के अंदर x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दो, f of minus x it will be pi by 2 sin x will become sin of minus x, second value 0, ये तो एज इट इज रहेगा। नाउ वी नो दैट sin of minus x it is minus sin x, तो ये हो जाएगा माइनस पाई बाय 2 sin x, एंड ये हो जाएगा 0 एज इट इज। मीन्स फंक्शन का जो वैल्यू था वो प्लस पाई बाय 2 sin x था, और सेकंड वैल्यू 0, तो ये हो गया माइनस पाई बाय 2 sin x एंड 0 विच इज नथिंग बट इक्वल टू माइनस ऑफ f of x। ये दोनों वैल्यूज में से हमने माइनस को कॉमन लिया, ये दोनों वैल्यूज में से माइनस को कॉमन लिया, तो सेकंड वैल्यू तो 0 ही है, तो एज इट इज 0 रहेगा। तो फर्स्ट वैल्यू में से माइनस को कॉमन लिया तो रिमेनिंग पाई बाय 2 sin x, सेकंड में से माइनस कॉमन लिया, ये 0 एज इट इज, सो पाई बाय 2 sin x एंड 0 दीज आर द वैल्यूज ऑफ f of x। सो f of x के अंदर हमने x को माइनस x से रिप्लेस किया, तो अब यहाँ पे ये चेंज हो गया, वी आर गेटिंग माइनस ऑफ f of x, इट मींस दैट इट इज ऑड फंक्शन। So in this way, we have to check the nature of function, either it is even or it is odd. And on the basis of nature of given function, we have to apply different results. Now, what are the results which we are going to use? तो एक तो है फोरियर कोसाइन इंटीग्रल, और उसके बाद में आएगा फोरियर साइन इंटीग्रल। सो फोरियर कोसाइन इंटीग्रल, it is applicable if function it is even, if f of x is even function, then Fourier cosine integral is given by f of x, it is equal to 2 upon pi integration 0 to infinity cos lambda x, again integration 0 to infinity f of t into cos lambda t dt d lambda. So this is the formula of Fourier cosine integral, and we have deducted this result from actual Fourier integral, जो हमने स्टार्टिंग में सबसे पहले Fourier integral का फॉर्मूला लिखा है, यहाँ पे एक लिमिट माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी था, उसी पे से ये हमने डिडक्ट किया है कि इफ फंक्शन इट इज इवन देन Fourier cosine integral is given by this formula, ठीक है। And similarly we are having next result for Fourier sine integral.
So if f of x is odd, then Fourier sine integral is given by f of x, it is equal to 2 upon pi integration 0 to infinity sine lambda x, again integration 0 to infinity f of t into sine lambda t dt and d lambda. F of t sine lambda t dt and d lambda. Just a minute. Dt and d lambda. Okay. So integration 0 to infinity f of t sine lambda t dt and d lambda. So this is the formula for Fourier sine integral. Now, if you look out on these two results, then both are near about identical. Both are near about identical to each other. f of x equal to 2 upon pi, 2 upon pi, दोनों के अंदर सेम लिखा है. इंटीग्रेशन 0 to infinity, यहाँ पे cos lambda x है, यहाँ पे sin lambda x. Then integration 0 to infinity f of t, it is common. Then we are having cos lambda t, and here we are having sin lambda t. So it means that if you are writing sine integral, Fourier sine integral, so in that we have to use sine function, and if you are writing Fourier cosine integral, in that we have to use cos function. After that, one major thing कि अब ये रिजल्ट हमें कब यूज करना है. As I told you, we are not going to use actual main formula of Fourier integral for solving the problems. हमें चेक करना है फंक्शन का नेचर कि either given function it is even or given function it is odd. अब अगर सपोज फंक्शन इवन आता है तो in that case we have to use Fourier cosine integral. In that case we have to use Fourier cosine integral. It is for even function. Consider compulsory है कि function even रहना चाहिए, तो हमें Fourier cosine integral find करना है. Similarly, अब अगर function odd अगर आता है तो in that case we have to use Fourier sine integral. अभी ये तो हमें पता है कि cos function it is even, sin function it is odd, तो उस पे से याद रखा तो भी चलेगा. फंक्शन अगर इवन रहा तो कोसाइन इंटीग्रल का फॉर्मूला यूज करना है, फंक्शन अगर ऑड आता है तो साइन इंटीग्रल का फॉर्मूला यूज करना है. एंड वन मोर थिंग व्हिच इज इंपॉर्टेंट, अगेन वन मोर थिंग, whenever we are going to use this result, अब इसमें से हमें सॉल्व क्या करना है. अब ये इंटीग्रेशन के अंदर तो यहाँ पे आपको ऐसे लग रहा होगा कि डबल इंटीग्रेशन है. वन इंटीग्रेशन इट इज विद रिस्पेक्ट टू टी, सेकंड इट इज विद रिस्पेक्ट टू लैम्ब्डा, बट दोनों में से सॉल्व आपको कौन सा करना है. सो फॉर दैट प्लीज सी इट केयरफुली. We are going to solve the innermost integral or innermost bracket. Means जब भी Fourier integral आप अप्लाई करोगे तो दोनों इंटीग्रेशन सॉल्व करना नहीं है. We have to solve only one integration, and which is the innermost bracket. Integration 0 to infinity f of t cos lambda t dt. बस ये इंटीग्रेशन आपको सॉल्व करना है. रिमेनिंग जो है इंटीग्रेशन वो एज इट इज रहेगा. सिमिलरली if you are finding Fourier sine integral, so we will solve integration 0 to infinity f of t into sine lambda t dt only. सिर्फ हमें इतना इंटीग्रेशन सॉल्व करना है. ये इंटीग्रेशन सॉल्व करना है मींस सब्स्टिट्यूट हियर वैल्यू ऑफ फंक्शन f of t का जो गिवन वैल्यू प्रॉब्लम के अंदर रहेगा वो पुट करना है. sin lambda t it is in multiplication, और जो भी फंक्शन रहेगा उसका जो भी नेचर रहेगा accordingly we have to solve the integration, apply the upper limit, apply the lower limit. So we are calling it as Fourier integral. It means that कि फाइनल जो सॉल्यूशन रहेगा इट विल आल्सो बी इन द फॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन. दोनों इंटीग्रेशन हमें यहाँ पे सॉल्व करना नहीं है, दोनों में से एक ही इंटीग्रेशन हम सॉल्व करेंगे, और वो भी कौन सा, जो अंदर का ब्रैकेट लिखा है इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टी. यहाँ पे फंक्शन का वैल्यू पुट करना है, इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है, अपर लिमिट अप्लाई करना है, लोअर लिमिट अप्लाई करना है. सो प्लीज रिमेंबर दैट फाइनल सॉल्यूशन विल बी इन द फॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन अगेन. ठीक है. सो कैसे अप्लाई करना है, वी हैव टू चेक द नेचर ऑफ फंक्शन. If function is even, then we will use Fourier cosine integral. If function is odd, then we will use Fourier sine integral. ठीक है, that's it. अब इसके problems. Okay, so now we are going to take problems based on Fourier integral.
So starting with the first problem. If f of x equals to e to the power kx for x less than 0, and it is equal to e to the power minus kx for x greater than equal to 0. Also k is greater than 0. So using Fourier integral, we have to show that integration 0 to infinity cos omega x upon k square plus omega square d omega, that is equal to pi upon twice k into e to the power minus kx. That is the required result जो हमें show करना है. So let's check it. So solution of this problem. We will start with given function f of x, it is equal to e to the power kx for x less than 0, it is equal to e to the power minus kx for x greater than equal to 0. Now question is, using Fourier integral we have to show the required result. Means पहले तो आपको Fourier integral यहाँ पे find करना है. We have to find Fourier integral of given function. Fourier integral आने के बाद required result जो है वो उसके बाद में automatically आ जाएगा. अभी Fourier integral find करना है, तो as I told you earlier कि Fourier integral का main जो formula है वो हमें कहीं पे भी use करना नहीं है, because main formula के अंदर एक जो इंटीग्रेशन है उसके लिमिट माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी लिखी है, और माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी ये इंटीग्रेशन अगर सोल्व किया तो 99% चांसेस है कि उसका वैल्यू इंफिनिटी रहेगा. सो दैट्स व्हाई मेन फॉर्मूला फोरियर सीरीज का हमें यूज करना नहीं है. वी आर हैविंग टू ऑप्शन, एक तो फोरियर कोसाइन इंटीग्रल यूज करना है या फिर फोरियर साइन इंटीग्रल यूज करना है, और उसके लिए आपको चेक करना होगा नेचर ऑफ गिवन फंक्शन. आइदर गिवन फंक्शन इज इवन और गिवन फंक्शन इज ऑड, ये हमें चेक करना होगा. उसके बाद में फिर डिसाइड करेंगे कि फोरियर कोसाइन सीरीज यूज करना है, कोसाइन इंटीग्रल यूज करना है या फिर फोरियर साइन इंटीग्रल यूज करना है. ठीक है. सो नाउ वी विल चेक द नेचर ऑफ फंक्शन, आइदर इट इज इवन और इट इज ऑड. अब ये पहले चेक कर लेते हैं. सो इवन ऑड चेक करना है तो उसके लिए रिप्लेस x बाय माइनस एक्स इन द फंक्शन. अभी x को माइनस एक्स से हमें रिप्लेस करना है, तो फर्स्ट वैल्यू ऑफ फंक्शन e टू द पावर kx, it will become e to the power minus kx. Second value of function e to the power minus kx, it will become e to the power plus kx. ठीक है. So after replacing x by minus x, we got first value of function as e to the power minus kx, second value of function as e to the power plus kx. And limit अगर change किया तो limit automatically change होता ही है function के साथ में. x लेस देन 0 है तो माइनस एक्स लेस देन 0 मींस x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा. लिमिट पे अगर वेरिएबल चेंज किया तो ये होगा माइनस एक्स लेस देन 0 और ये होगा माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0. अभी माइनस एक्स लेस देन 0 का मीनिंग होता है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मीनिंग होगा x लेस देन 0. तो लिमिट को जनरली चेक किया तो भी चलेगा, नहीं किया तो भी चलेगा. लिमिट ये ऑप्शनल है. अगर सपोज फंक्शन के अंदर सिर्फ कांस्टेंट वैल्यू अगर आता है तो फिर आप लिमिट चेक कर सकते हो.
ठीक है, फंक्शन के अंदर अगर कांस्टेंट लिमिट आता है तो फिर आपको लिमिट चेक करना है, तो फिर आपको लिमिट से डिसाइड करना है नेचर ऑफ फंक्शन। बट फंक्शन के अंदर यहाँ पे वेरिएबल एक्स प्रेजेंट है, तो फिर आपने लिमिट चेक नहीं किया तो भी चलेगा, यू कैन स्किप दिस पार्ट, क्योंकि फंक्शन अगर चेंज होगा तो उसके साथ साथ लिमिट ऑटोमेटिकली चेंज होती है। नाउ चेक दैट व्हाट वी गॉट हियर। हमने क्या किया कि एफ ऑफ एक्स फंक्शन के अंदर हमने माइनस एक्स पुट किया, एक्स की जगह पे माइनस एक्स। सो व्हाट वी गॉट हियर, फर्स्ट वैल्यू e टू द पावर माइनस के एक्स आ गया और सेकंड वैल्यू e टू द पावर के एक्स आ गया। और जो एक्चुअल वैल्यूज थे, तो फर्स्ट वैल्यू तो e टू द पावर प्लस के एक्स लिखा था, सेकंड वैल्यू e टू द पावर माइनस के एक्स लिखा था। अभी क्या हुआ कि सीक्वेंस चेंज हो गया, जो नीचे का वैल्यू था वो ऊपर आया और जो ऊपर का वैल्यू था वो नीचे आ गया, सिर्फ सीक्वेंस चेंज हुआ है और ज्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ सीक्वेंस चेंज हुआ है और बाकी कुछ भी चेंज नहीं है। ऊपर जो वैल्यू लिखा था वो नीचे आ गया और नीचे जो वैल्यू लिखा था वो ऊपर हो गया। मींस वी गॉट सेम वैल्यू, जो एफ ऑफ एक्स के वैल्यूज थे वही वैल्यूज हमको मिले, चेंज नहीं हुआ है। वी गॉट सेम वैल्यू, जो एफ ऑफ एक्स के वैल्यूज थे वही वैल्यूज हमें मिले हैं। इट मींस दैट कि एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करने के बाद हमें सेम फंक्शन मिला एफ ऑफ एक्स, सो देयरफॉर इट इज इवन फंक्शन। ठीक है, फंक्शन का सिर्फ सीक्वेंस चेंज हुआ, फर्स्ट वैल्यू जो है वो नीचे गया और नीचे का वैल्यू ऊपर आया। और एक चीज आप वेरीफाई कर सकते हो, चेक कर सकते हो, लिमिट मैंने ये बोला है कि ये ऑप्शनल है कि लिमिट चेक नहीं किया तो भी चलेगा। फंक्शन के अंदर अगर वेरिएबल एक्स प्रेजेंट है तो लिमिट चेक नहीं किया तो भी चलेगा। बट अब ठीक है, यहाँ पे हमने लिमिट को फाइंड कर ही लिया एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करके, तो एक और चीज आप चेक कर लो, ई टू द पावर माइनस के एक्स, यहाँ पे हमें फर्स्ट वैल्यू आया है ई टू द पावर माइनस के एक्स, और उसके लिए लिमिट आया एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और फंक्शन के अंदर सेम वही है, e टू द पावर माइनस के एक्स, उसके लिए लिमिट x ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सेकंड वैल्यू फंक्शन का आया e टू द पावर प्लस के एक्स, उसके लिए लिमिट आया x लेस देन 0, और ये बाय डिफॉल्ट गिवन है e टू द पावर के एक्स, इसके लिए लिमिट x लेस देन 0। इट मींस दैट फंक्शन नीचे ऊपर अगर सीक्वेंस चेंज होता है तो लिमिट का भी सीक्वेंस नीचे ऊपर ऑटोमेटिकली चेंज होता है। दैट्स व्हाई इट इज ऑप्शनल, ये चेक नहीं किया तो चलेगा। सो अब ये डिसाइड हो गया कि इट इज इवन फंक्शन, एंड इवन फंक्शन है तो देयरफॉर we can use Fourier cosine integral. Therefore, Fourier cosine integral is given by Fourier cosine integral is given by. Now, formula of Fourier cosine integral. We need here formula of Fourier cosine integral. So, formula of Fourier cosine integral, it is f of x. It is equal to 2 upon pi integration 0 to infinity cos lambda x, again integration 0 to infinity f of t into cos lambda t dt bracket complete and d lambda as it is। ये हो गया फॉर्मूला ऑफ फोरियर कोसाइन इंटीग्रल। अब ये फॉर्मूला तो हमने लिख दिया। नाउ इन दिस फॉर्मूला इट इज क्लियरली विजिबल दैट के इसके अंदर दो इंटीग्रेशन प्रेजेंट है, बट दोनों इंटीग्रेशन हमें सोल्व करना नहीं है। फोरियर इंटीग्रल सोल्व कर रहे हैं, फोरियर कोसाइन हो या फिर फोरियर साइन हो, ये मैंने इसके पहले भी बताया कि दोनों इंटीग्रेशन सोल्व करना नहीं है। फोरियर इंटीग्रल सोल्व करना है मींस वी हैव टू सॉल्व ओनली वन इंटीग्रल। फाइनल जो सॉल्यूशन रहेगा वो इंटीग्रेशन के फॉर्मेट में ही रहेगा, दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट एज फोरियर इंटीग्रल और फोरियर कोसाइन इंटीग्रल। मींस फाइनल सॉल्यूशन जो रहेगा वो इंटीग्रेशन के फॉर्मेट में ही रहेगा। तो दोनों में से हमें सिर्फ एक इंटीग्रेशन यहाँ पे सोल्व करना है। अब यहाँ पे हम कौन सा सोल्व करेंगे, जो इनर मोस्ट ब्रैकेट रहेगा, इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी एफ ऑफ टी cos lambda t dt, बस ये इतने ब्रैकेट का वैल्यू हमें सोल्व करना है। अब ये ब्रैकेट सेपरेटली सोल्व किया तो भी चलेगा, अगर यहीं पे कंप्लीट इक्वेशन के अंदर अगर सोल्व किया तो भी चलेगा। ये ब्रैकेट को अगर आप सेपरेट लेकर सोल्व करते हो तो भी चलेगा, यहीं पे अगर रखकर सोल्व किया तो भी चलेगा, दैट डजंट मैटर। सिर्फ अगर यहीं सोल्व करते हो इन बिटवीन दिस फॉर्मूला तो फिर उससे कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। ब्रैकेट के बाहर की जो टर्म्स है उसको देखकर ऐसे लगेगा कि लेंथी है, कॉम्प्लिकेटेड है, बट ये लेंथी नहीं है। ब्रैकेट के बाहर की टर्म को आप इग्नोर कर दो। ब्रैकेट के बाहर जो टर्म है 2 अपॉन पाई इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी cos लैम्डा x और लास्ट में d लैम्डा, इसको इग्नोर कर दो। ऐसे सपोज करो कि ये टर्म्स है ही नहीं, वी आर ओनली सॉल्विंग दिस ब्रैकेट इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी f ऑफ t cos लैम्डा t dt, बस इतना ब्रैकेट हमें सॉल्व करना है। ठीक है, अब ये ब्रैकेट सॉल्व करना है तो उसके लिए पहले तो हमें यहाँ पे f ऑफ t का वैल्यू चाहिए। f of t means we need value of function in the form of t।
सो अब जो गिवन फंक्शन है उसके तो दो वैल्यूज है, गिवन फंक्शन के दो वैल्यूज है, e to the power kx, e to the power minus kx. Yes, these are the values of given function, e to the power kx and e to the power minus kx. तो फिर अब ये दोनों में से हम यहाँ पे कौन सा वैल्यू यूज करेंगे? फंक्शन के दो वैल्यूज लिखे हैं, अब इंटीग्रेशन सॉल्व करते टाइम पे दोनों में से हमें कौन सा वैल्यू यहाँ पे यूज करना है? तो उसके लिए आपको चेक करना होगा लिमिट्स ऑफ फंक्शन, लिमिट्स ऑफ फंक्शन। समवेयर ऐसे हो सकता है कुछ प्रॉब्लम में कि आपको दोनों वैल्यूज यूज करना पड़ेगा, कुछ प्रॉब्लम के अंदर ऐसे होगा कि आपको वहां पे सॉल्व करते टाइम पे दोनों वैल्यूज को यूज करना होगा, फर्स्ट वैल्यू एज वेल एज सेकंड वैल्यू। और कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे आएंगे कि जहां पे आपको दोनों में से किसी एक को यूज करना है, लेट्स टेक इट। और ये डिसाइड कैसे करोगे? वी हैव टू डिसाइड इट ऑन द बेसिस ऑफ लिमिट्स, जो फंक्शन के लिमिट्स यहाँ पे लिखे हैं उसको चेक कर लो। फर्स्ट जो वैल्यू है फंक्शन का एफ ऑफ एक्स इक्वल टू e टू द पावर के एक्स, इसके लिए लिमिट है x लेस देन 0। अभी x लेस देन 0 का मीनिंग क्या होगा? This value will be used only for negative values of x less than 0. x less than 0 means negative values of x के लिए ही हमें ये फंक्शन का फर्स्ट वैल्यू e टू द पावर के एक्स यूज करना है। एंड x greater than equal to 0, greater than and equal to 0 means all the positive values starting with 0, greater than equal to 0 means 0 टू इंफिनिटी तक जितने भी वैल्यूज रहेंगे x के, उसके लिए आपको ये सेकंड फंक्शन का यूज करना है e टू द पावर माइनस के एक्स। ठीक है, फर्स्ट जो लिमिट है x लेस देन 0, लेस देन 0 मीन्स नेगेटिव, नेगेटिव मीन्स ऐसे बोल सकते हैं माइनस इन्फिनिटी टू 0। अगर आपको इसे लिखना है तो वी कैन कॉल इट एज माइनस इन्फिनिटी टू 0 इन द ओपन इंटरवल, क्योंकि 0 ऑलरेडी सेकंड वैल्यू में इन्वॉल्व है। सो माइनस इन्फिनिटी टू तक 0 तक, माइनस इन्फिनिटी टू 0 तक इसके बीच के जितने वैल्यूज रहेंगे उसके लिए आप फर्स्ट वैल्यू यूज कर सकते हो e टू द पावर के एक्स, और 0 टू इन्फिनिटी इसके बीच में जितने वैल्यूज रहेंगे उसके लिए सेकंड वैल्यू यूज कर सकते हैं। अब चेक करते हैं इंटीग्रेशन जो हम सोल्व करने वाले हैं कि वहां पे हमें क्या चाहिए। ये इंटीग्रेशन हमें सोल्व करना है, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी एफ ऑफ टी कॉस लैम्डा टी डी टी। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन की लिमिट गिवन है, limits of integration are 0 to infinity, limits of integration are 0 to infinity। it means that कि हमें फंक्शन का वैल्यू चाहिए फॉर द इंटरवल 0 टू infinity, फंक्शन एफ ऑफ टी का वैल्यू चाहिए फॉर द इंटरवल 0 टू infinity ओनली। 0 और infinity के बीच में जो वैल्यू रहेगी फंक्शन का हमें वही वैल्यू यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो फंक्शन के दो वैल्यूज थे, फर्स्ट वैल्यू तो नेगेटिव वैल्यूज के लिए माइनस इन्फिनिटी टू 0 मींस ये वाला अभी यहाँ पे यूज नहीं होगा। सेकंड है 0 टू इन्फिनिटी के लिए, तो वी विल यूज e टू द पावर माइनस के एक्स फॉर सॉल्विंग द इंटीग्रेशन। सो f of x इक्वल टू e टू द पावर माइनस के एक्स फॉर 0 टू इन्फिनिटी, फॉर 0 to infinity f of x it is equal to e to the power minus kx, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। बट दिस इज द वैल्यू ऑफ f of x, और इंटीग्रेशन के अंदर हमें f of t चाहिए, वी डू नॉट नीड f of x। इंटीग्रेशन जो हम सोल्व कर रहे हैं वो विद रिस्पेक्ट टू t सोल्व करने वाले हैं, इंटीग्रेशन हम जो सोल्व कर रहे हैं वो विद रिस्पेक्ट टू t सोल्व करने वाले हैं, इसलिए हमें यहाँ पे वैल्यू f of t का चाहिए, ये f of x का है, तो इसको f of t के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, रिप्लेस x बाय t, तो f of t हो जाएगा e टू द पावर माइनस के टी। एंड नाउ अब ये वैल्यू हमें इंटीग्रेशन के अंदर यूज करना है। ठीक है, सो यूजिंग दिस वैल्यू इन द इंटीग्रेशन f of x it is equal to 2 upon pi integration 0 to infinity cos lambda x in bracket integration 0 to infinity f of t का वैल्यू e to the power minus के टी into cos lambda t dt as it is and d lambda as it is। अब फंक्शन का वैल्यू तो हमने पुट कर दिया, अब इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है। इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल इनटू cos, इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल इनटू cos, we cannot solve it by using integration by parts,
इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से ये सॉल्व नहीं होगा. Though we are having product of two functions, but we cannot solve it by using integration by parts, because if you want to apply integration by parts, then derivative of first function should be 0 after some time. First function का derivative 0 आना चाहिए. और यहाँ पे आप exponential को first लो या cos को first लो. Basically we will take cos as first function. Exponential will always be last function. तो cos का डेरिवेटिव कभी भी 0 नहीं आएगा. cos का डेरिवेटिव माइनस साइन होगा, माइनस साइन का माइनस cos होगा, माइनस cos का प्लस साइन होगा, ये कंटिन्यू रहेगा. cos फंक्शन का डेरिवेटिव 0 नहीं आता है, ये कंटिन्यू चलता रहेगा. तो दैट्स व्हाई वी कैन नॉट अप्लाई हियर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. बट इंटीग्रेशन तो हमें सोल्व करना ही है, तो इसके लिए डायरेक्ट स्टैंडर्ड रिजल्ट है. वी आर हैविंग डायरेक्ट स्टैंडर्ड रिजल्ट फॉर इट. सिंस integration of e to the power ax into cos bx dx, it is equal to e to the power ax upon a square plus b square in bracket a cos bx plus b sin bx. It is the formula, standard formula, integration of exponential into cos. We are having one similar formula for integration of exponential into sin. तो ये फॉर्मूला का यूज करके हम इंटीग्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं. अब ये फॉर्मूला अगर अप्लाई करना है तो फॉर दैट वी नीड टू वैल्यूज, a एंड b. दो वैल्यूज हमें चाहिए. ये फॉर्मूला अगर अप्लाई करना है तो उसके लिए हमें दो वैल्यूज चाहिए, a एंड b. सो व्हाट इज a एंड व्हाट इज b? a, इट इज कोएफिशिएंट ऑफ x इन द एक्सपोनेंशियल फंक्शन. तो एक तो ये कि हम यहाँ पे जो इंटीग्रेशन सॉल्व कर रहे हैं वो विद रिस्पेक्ट टू t ले रहे हैं. ठीक है, जो इंटीग्रेशन हम सोल्व कर रहे हैं वो विद रिस्पेक्ट टू हम t ले रहे हैं. सो x की जगह पे आपको t लेना है. नाउ a मींस कोएफिशिएंट ऑफ x इन द एक्सपोनेंशियल फंक्शन. तो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन के अंदर t का जो कोएफिशिएंट है इट इज -k. तो a की वैल्यू रहेगा -k. एंड b, तो b इट इज कोएफिशिएंट ऑफ x इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, cos फंक्शन. तो b इट इज कोएफिशिएंट ऑफ x इन द एंगल ऑफ cos फंक्शन. मींस एंगल ऑफ cos फंक्शन के अंदर अभी हमें t का कोएफिशिएंट चेक करना है. तो यहाँ पे t का कोएफिशिएंट जो लिखा है इट इज लैम्बडा. तो b का वैल्यू रहेगा यहाँ पे लैम्बडा. अब ये फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है कि सिर्फ a और b के वैल्यूज फॉर्मूले में पुट करना है. f of x it will become 2 upon pi as it is, integration 0 to infinity as it is, cos lambda x it is also as it is. यहां तक तो ये हमने as it is लिखा है, इसमें कुछ चेंज करना नहीं है. लास्ट का d lambda भी as it is लिखना है in bracket. Now integration of exponential into cos. तो पहले तो exponential term as it is e to the power ax. तो ये exponential e to the power minus kt it is as it is upon a square plus b square. तो a का वैल्यू यहाँ पे है -k its square plus b square, b का वैल्यू है lambda, again its square. After that in bracket a cos bx. तो a का वैल्यू -k, cos b का वैल्यू lambda and x means t, plus b sin bx. तो b का वैल्यू lambda, sin bx. तो b मीन्स फिर से लैम्बडा एंड x मीन्स t. ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल इनटू कॉस. हमने क्या किया, सिर्फ a और b के वैल्यूज आइडेंटिफाई करके फॉर्मूले में पुट किए, बाकी और कुछ भी चेंज हमने नहीं किया. अभी लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी. तो अब इंटीग्रेशन सॉल्व हो गया तो उसके ऊपर लिमिट्स अप्लाई कर दो, 0 टू इन्फिनिटी ऑन कंप्लीट ब्रैकेट. अभी ब्रैकेट के बाहर जो है ये डी लैम्बडा एज इट इज लिखा था, तो ये डी लैम्बडा ब्रैकेट के बाहर ये लास्ट में एज इट इज लिखना ही है. Okay, now we have to apply the limits. It is equal to 2 upon pi as it is, integration 0 to infinity as it is, cos lambda x as it is. अभी लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन हमें अप्लाई करना है. तो अपर लिमिट जो है इट इज x इक्वल टू इन्फिनिटी और t इक्वल टू इन्फिनिटी. इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t हमने सोल्व किया, तो अपर लिमिट हमें पुट करना है t इक्वल टू इन्फिनिटी, t के जगह पे इन्फिनिटी. तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन में
t इक्वल टू इन्फिनिटी अगर पुट किया तो ये हो जाएगा e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी, e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी। रिमेनिंग टर्म्स नहीं लिखे तो भी चलेगा, बिकॉज वैल्यू ऑफ e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी इट इज जीरो। एक तो क्या होगा कि पावर में इन्फिनिटी है तो एक तो ऐसे लगेगा कि इसका वैल्यू इन्फिनिटी होगा या फिर जीरो होगा, तो उसको बाद में चेक करते हैं। इन्फिनिटी रहा तो भी रिमेनिंग टर्म से मल्टीप्लाई किया तो इन्फिनिटी हो जाएगा, जीरो रहा और रिमेनिंग टर्म से मल्टीप्लाई किया तो जीरो हो जाएगा। सो नो नीड टू राइट द रिमेनिंग टर्म्स। अपॉन में जो लिखा है के स्क्वायर प्लस लैम्बडा स्क्वायर इनटू दिस ब्रैकेट, इसको नहीं लिखा तो भी चलेगा। अपर लिमिट के लिए e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी माइनस लोअर लिमिट। अभी लोअर लिमिट जो हमें पुट करना है इट इज t इक्वल टू जीरो, तो t इक्वल टू जीरो पुट किया तो ये हो जाएगा e टू द पावर जीरो अपॉन माइनस के ब्रैकेट स्क्वायर मीन्स के स्क्वायर प्लस लैम्बडा स्क्वायर इन ब्रैकेट। अभी फिर से यहाँ पे t इक्वल टू जीरो पुट करना है तो माइनस के कॉस जीरो एंड प्लस लैम्बडा साइन जीरो। अभी t इक्वल टू जीरो कंप्लीट फंक्शन में हमने पुट किया, तो अपर लिमिट के लिए सिर्फ एक टर्म लिखा है e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी, बाकी कहीं पे भी t इक्वल टू इन्फिनिटी हमने पुट नहीं किया क्योंकि वो फाइनली रिमूव हो जाएगा, तो पुट नहीं किया तो भी चलेगा। ठीक है, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट और ये ब्रैकेट के बाहर का जो डी लैम्बडा है ये लास्ट तक एज इट इज लिखना है। नाउ अगेन सिंप्लीफाइड। अब चेक करते हैं व्हाट इज वैल्यू ऑफ e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी। सो सिंस e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी इट इज इक्वल टू जीरो, तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। फर्स्ट टर्म इट विल बिकम जीरो, f of x it is equal to 2 upon pi integration 0 to infinity cos lambda x up to here as it is in bracket first term it is 0 minus e to the power 0 it is 1, तो ये हो जाएगा 1 upon k square plus lambda square in bracket minus k as it is cos 0 it is 1 plus lambda is, as it is sin 0 it is 0 and into d lambda as it is. Again simplified, f of x it is equal to 2 upon pi integration 0 to infinity cos lambda x as it is in bracket minus 1 upon k square plus lambda square and in bracket minus k. Second term plus lambda into 0 will be 0 and into d lambda as it is. Again simplified, so f of x it is equal to 2 upon pi integration 0 to infinity cos lambda x in bracket now minus 1 upon k square plus lambda square into minus k, minus minus ये हो जाएगा plus k upon k square plus lambda square into d lambda as it is. After that अभी जो रिमेनिंग इंटीग्रेशन है वो हमें सॉल्व तो करना नहीं है बट फंक्शन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। रिमेनिंग इंटीग्रेशन इट इज विद रिस्पेक्ट टू लैम्बडा, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू लैम्बडा मींस k कांस्टेंट रहेगा, तो न्यूमरेटर में ऊपर जो k लिखा है ये इसे हम कांस्टेंट है से इंटीग्रेशन के बाहर ले सकते हैं, सो इट विल बिकम f of x इट इज इक्वल टू ट्वाइस k अपॉन पाई, कांस्टेंट k बाहर आ गया, रिमेनिंग टर्म इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी cos लैम्बडा x अपॉन k square plus lambda square d lambda, and it is the required Fourier integral of given function. It is the required Fourier integral of given function. Fourier integral है, not required result. It is not the required result. It is the Fourier integral of given function. So जैसे मैंने आपको बोला था कि Fourier integral फॉर्मूले के अंदर दो इंटीग्रेशन है बट हमें एक ही इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है, दोनों को सॉल्व करना नहीं है। मीन्स फाइनल जो सॉल्यूशन रहेगा वो बाय डिफॉल्ट इंटीग्रेशन के फॉर्मेट में ही रहेगा। ओके, अभी ये तो हो गया विच इज फोरियर इंटीग्रल ऑफ गिवन फंक्शन। ठीक है, बट अब रिक्वायर्ड रिजल्ट क्या चाहिए उसको एक बार चेक कर लेते हैं। सो लेट्स सी द प्रॉब्लम कि हमें एक्चुअल फाइंड क्या करना है। Yes, question is using Fourier integral we have to show that this is the required result. Using Fourier integral we have to show that integration 0 to infinity cos omega x upon k square plus omega square d omega
मीन्स हमें इंटीग्रेशन की जो टर्म है उसका वैल्यू फाइंड करना है। इंटीग्रेशन की जो टर्म है उसका वैल्यू फाइंड करना है। इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी cos ओमेगा x अपॉन k स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर डी ओमेगा। इंटीग्रेशन इज विद रिस्पेक्ट टू ओमेगा डी ओमेगा, इसका वैल्यू हमें फाइंड करना है। बट हमने जो फोरियर इंटीग्रल फाइंड किया उसमें तो ओमेगा है ही नहीं। हमने जो फोरियर इंटीग्रल फाइंड किया है इसमें तो ओमेगा है ही नहीं। यहाँ पे इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू लैम्बडा है और रिक्वायर्ड रिजल्ट के अंदर लैम्बडा नहीं है, वहां पे इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू ओमेगा चाहिए। सो व्हाट विल डू, पहले तो रिप्लेस कर दो, रिप्लेस लैम्बडा बाय ओमेगा। पहले तो इसको रिप्लेस कर दो, ये रिप्लेस होने के बाद डिसाइड करेंगे कि नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा। सो रिप्लेसिंग lambda by omega, we will get here f of x, it is equal to twice k upon pi integration 0 to infinity cos omega x upon k square plus omega square d omega। तो ऑटोमेटिकली रिमेनिंग जो टर्म्स है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गए। सो अब हमें सिर्फ इंटीग्रेशन का वैल्यू चाहिए, जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है उसमें हमें सिर्फ ये इंटीग्रेशन का वैल्यू फाइंड करना है। मींस वी नीड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी cos ओमेगा x अपॉन k स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर d ओमेगा। हमें सिर्फ इतने टर्म का वैल्यू फाइंड करना है। सो फ्रॉम दिस इक्वेशन वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन, ये फिर 2k अपॉन पाई जो है इसे लेफ्ट साइड पे ट्रांसफर कर दो, तो इट विल बिकम पाई अपॉन ट्वाइस k इनटू f of x, it is equal to integration 0 to infinity cos omega x upon k square plus omega square d omega। So therefore value of integration 0 to infinity cos omega x upon k square plus omega square d omega जो हमें फाइंड करना था, इसका वैल्यू आ गया पाई अपॉन ट्वाइस के इंटू एफ ऑफ एक्स। बट ये भी फाइनल रिजल्ट नहीं है, यहाँ पे इंटू एफ ऑफ एक्स हमने लिखा है और जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है वहां पे क्या चाहिए, वहां पे चाहिए इंटू एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई टू द पावर माइनस के एक्स। मीन्स अभी हमें एफ ऑफ एक्स का वैल्यू यहाँ पे पुट करना है। हमने जो फाइंड किया यहाँ पे इंटू एफ ऑफ एक्स आया है। हमने जो अभी वैल्यू फाइंड किया इंटीग्रेशन का, इसमें यहाँ पे पाई अपॉन ट्वाइस के इंटू एफ ऑफ एक्स लिखा है और रिक्वायर्ड रिजल्ट में एफ ऑफ एक्स नहीं है। मीन्स एफ ऑफ एक्स का वैल्यू हमें यहाँ पे पुट करना है। बट अभी एफ ऑफ एक्स के तो दो वैल्यूज है, फिर से वही प्रॉब्लम, एफ ऑफ एक्स के दो वैल्यूज है e टू द पावर के एक्स e टू द पावर माइनस के एक्स। वी आर हैविंग टू वैल्यूज ऑफ फंक्शन, फंक्शन के दो वैल्यूज है, तो दोनों में से अभी कौन सा वैल्यू हमें यूज करना है वहां पे एफ ऑफ एक्स का। सो लेट्स चेक इट कि दोनों में से कौन सा यूज करोगे, e टू द पावर के एक्स या e टू द पावर माइनस के एक्स। तो रिक्वायर्ड रिजल्ट को डायरेक्टली चेक किया तो इस पे से तो क्लियर हो गया कि यहाँ पे e टू द पावर माइनस के एक्स मीन सेकंड वैल्यू यूज किया है, तो डायरेक्ट लिख दिया तो भी चलेगा ये सेकंड वैल्यू हम वहां पे यूज कर रहे हैं। बट सेकंड ही क्यों, फर्स्ट क्यों नहीं, तो उसका रीजन ये है कि जो इंटीग्रेशन का वैल्यू हमने फाइंड किया है इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी, यहाँ पे जो लिमिट है इट इज 0 टू इन्फिनिटी। मींस फंक्शन का भी वैल्यू फिर हमें कौन सा लेना है, वी विल यूज द वैल्यू ऑफ फंक्शन फॉर द इंटरवल 0 टू इन्फिनिटी। वी विल यूज द वैल्यू ऑफ फंक्शन फॉर द इंटरवल 0 टू इन्फिनिटी ओनली। सो 0 टू इन्फिनिटी के लिए फंक्शन को जो वैल्यू है, ये सेकंड जो हमने पहले लिखा था यहाँ पे 0 टू इन्फिनिटी का e टू द पावर माइनस के एक्स। So that's why we are using here second value of function. So substituting this value, now it will become pi upon twice k and into e to the power minus kx, and which is the required result. Okay. Now next problem. In this problem, we have to express f of x as Fourier sine integral if f of x equal to 1 for the interval 0 less than equal to x less than equal to pi, and f of x equal to 0 for the interval x greater than pi. So as usual, we will start the solution with given values. Given
f of x equal to 1 for 0 less than equal to x less than equal to pi, and it is equal to 0 for x greater than pi. तो 0 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू पाई एंड एक्स ग्रेटर देन पाई, ये दो फंक्शन के वैल्यूज यहाँ पे दो डिफरेंट इंटरवल के लिए गिवन है. बट in this question it is directly mentioned that we have to express the function as Fourier sine integral. यहाँ पे डायरेक्टली लिखा है कि हमें Fourier sine integral फाइंड करना है. तो अभी तो फिर इवन और चेक करने का काम ही नहीं है. अगर सपोज सिर्फ इतना आता है कि Fourier इंटीग्रल फाइंड करना है तो फिर हमें चेक करना होगा इवन है या फिर ऑड है. बट यहाँ पे डायरेक्टली मेंशन किया है कि वी हैव टू एक्सप्रेस द फंक्शन एज Fourier साइन इंटीग्रल. तो हमें साइन इंटीग्रल के फॉर्मेट में लेकर आना है. ठीक है, तो इवन ऑड हमें यहाँ पे चेक करना नहीं है. सो डायरेक्टली वी विल राइट द फॉर्मूला ऑफ Fourier साइन इंटीग्रल. Fourier साइन इंटीग्रल इज गिवन बाय Fourier sine integral is given by the formula of Fourier sine integral f of x, it is equal to 2 upon pi integration 0 to infinity sine lambda x in bracket again integration 0 to infinity f of t into sine lambda t dt ब्रैकेट कंप्लीट और ब्रैकेट के बाहर डी लैम्डा एज इट इज. ये हो गया फॉर्मूला ऑफ फोरियर साइन इंटीग्रल. अब ये इंटीग्रेशन जो हमने फॉर्मूला लिखा है इसमें दो इंटीग्रेशंस है, बट दोनों हमें सॉल्व करना नहीं है. वी आर सॉल्विंग ओनली वन इंटीग्रेशन व्हिच इज द इनर मोस्ट टर्म. मींस व्हाट कि हमें सिर्फ ये ब्रैकेट को सॉल्व करना है. ये सिर्फ ब्रैकेट को सॉल्व करना है. इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी एफ ऑफ टी इनटू साइन लैम्डा टी dt, बस इतना ब्रैकेट हमें सॉल्व करना है. So integration 0 to infinity f of t into sine lambda t dt. We have to solve this integration only. तो अभी यहाँ पे हमें चाहिए वैल्यू ऑफ f of t. f of t का वैल्यू चाहिए. अभी फंक्शन के तो दो वैल्यूज है, f of x equal to 1 and 0. तो हमें यहाँ पे कौन सा वैल्यू यूज करना है? लास्ट जो प्रॉब्लम हमने सॉल्व किया वहां पे हमने दोनों में से कोई एक ही वैल्यू यूज किया था, बट यहाँ पे कौन सा रहेगा? तो फॉर दैट वी हैव टू चेक द लिमिट्स. जो इंटीग्रेशन हम सॉल्व कर रहे हैं उसके लिमिट्स है 0 टू इंफिनिटी. मींस वी नीड द वैल्यू ऑफ फंक्शन फॉर द लिमिट्स 0 टू इंफिनिटी. अब फंक्शन के इंटरवल जो है वो चेक करते हैं. f of x equal to 1 फर्स्ट वैल्यू, इट इज फॉर 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू पाई. मींस 0 टू पाई के लिए ये वैल्यू आ जाएगा. सेकंड, f of x equal to 0, इट इज फॉर x ग्रेटर देन पाई. x ग्रेटर देन पाई मींस पाई से जो बड़ी वैल्यूज रहेगी उसके लिए. x ग्रेटर देन पाई मींस ऐसे हो सकता है ट्वाइस पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, 7, 8, 9, 10, 100 अप टू इंफिनिटी. ये कंटिन्यू रहेगा. मींस इसका मीनिंग होगा पाई टू इंफिनिटी. फर्स्ट जो इंटरवल लिखा है 0 टू पाई, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये हमने डायरेक्ट लिख लिया 0 टू पाई. इस फंक्शन का जो फर्स्ट वैल्यू है इट इज फॉर द इंटरवल 0 टू पाई. बट फंक्शन का जो सेकंड वैल्यू है x ग्रेटर देन पाई, इसका मीनिंग होगा कि x ग्रेटर देन पाई. तो ट्वाइस पाई हो सकता है, 3 पाई हो सकता है, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, ये कंटिन्यू रहेगा अप टू इंफिनिटी. मींस पाई से स्टार्ट होगा तो अप टू इंफिनिटी. ठीक है, अब हमें जो इंटीग्रेशन के अंदर फंक्शन का वैल्यू यहाँ पे चाहिए, वी नीड द वैल्यू फॉर 0 टू इंफिनिटी. 0 टू इंफिनिटी तक के लिए हमें सिंगल वैल्यू चाहिए था, बट यहाँ पे तो दो अलग अलग वैल्यूज हो गए. फर्स्ट वैल्यू आ रहा है 0 से पाई तक और सेकंड आ रहा है पाई टू इंफिनिटी. मींस हमें जो वैल्यू चाहिए था, हमें चाहिए 0 टू इंफिनिटी के लिए. इसके लिए सिंगल वैल्यू नहीं है. फर्स्ट वैल्यू आ रहा है 0 टू पाई और सेकंड आ रहा है पाई टू इंफिनिटी. मींस जो 0 टू इंफिनिटी कंप्लीट इंटरवल है, अभी उसको आपको दो पार्ट में डिवाइड करना है. 0 टू इंफिनिटी जो कंप्लीट इंटरवल है उसे दो पार्ट में डिवाइड करना है. फर्स्ट पार्ट रहेगा 0 टू पाई और सेकंड पार्ट रहेगा पाई टू इंफिनिटी. तो अब जो इंटीग्रेशन हम सॉल्व कर रहे हैं उसमें हम ये दोनों में से कोई एक वैल्यू डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, बिकॉज 0 टू इंफिनिटी के लिए कोई सिंगल वैल्यू नहीं है. लास्ट जो प्रॉब्लम सॉल्व किया वहां पे 0 टू इंफिनिटी के लिए सिंगल वैल्यू था, इसलिए हमने उसको पुट कर दिया. बट यहाँ पे 0 टू इंफिनिटी के लिए कोई सिंगल वैल्यू नहीं है, दो अलग अलग वैल्यूज है. तो पहले जो इंटीग्रेशन है उसको दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं.
एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2/पाई एज इट इज, इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी एज इट इज, साइन लैम्बडा एक्स, ये भी एज इट इज हो गया। ठीक है, अब इन द ब्रैकेट अब हम क्या कर रहे हैं कि जो 0 टू इंफिनिटी ये जो इंटीग्रेशन लिखा है इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट 0 टू पाई और सेकंड पार्ट पाई टू इंफिनिटी। सो वी विल राइट इट एज इंटीग्रेशन 0 टू पाई, फंक्शन एज इट इज रहेगा एफ ऑफ टी इंटू साइन लैम्बडा टी डी टी, एंड यहां तक तो एज इट इज हो गया, प्लस अब फिर से सेकंड इंटीग्रेशन, अब ये पाई से ही कंटिन्यू होगा तो ये होगा पाई टू इंफिनिटी। मींस एक ही इंटीग्रेशन था 0 टू पाई 0 टू इंफिनिटी, उसको दो पार्ट में डिवाइड किया। फर्स्ट पार्ट 0 टू पाई और सेकंड पार्ट पाई टू इंफिनिटी, दोनों के अंदर का फंक्शन सेम रहेगा, एफ ऑफ टी इंटू साइन लैम्बडा टी डी टी, दोनों के अंदर का फंक्शन सेम है। मेन ब्रैकेट कंप्लीट। हमने जो चेंजेस किए सिर्फ ये ब्रैकेट के अंदर किए, ये इंटीग्रेशन जो ब्रैकेट के अंदर का है बस इसमें चेंज किए, ब्रैकेट के बाहर जो डी लैम्बडा लिखा है ये एज इट इज विदाउट एनी चेंज। अब चेक करो कि अब हम फंक्शन का कौन सा वैल्यू यूज कर सकते हैं। लेट्स चेक इट। अब इंटीग्रेशन सिंगल था, हमने उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया क्योंकि 0 टू इंफिनिटी के लिए हमारे पास फंक्शन का सिंगल वैल्यू नहीं था, इसलिए हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया। अब जो दो इंटीग्रेशन हमें सोल्व करना है इसमें पहले हमें एफ ऑफ टी का वैल्यू चाहिए फर्स्ट इंटीग्रेशन में। तो फर्स्ट इंटीग्रेशन में एफ ऑफ टी का ऐसा वैल्यू चाहिए फॉर द लिमिट 0 टू पाई। फर्स्ट इंटीग्रेशन में जो हमें फंक्शन का वैल्यू चाहिए we need it for the interval 0 to pi। तो 0 टू पाई के लिए फंक्शन का जो वैल्यू रहेगा वो फर्स्ट वैल्यू आएगा 1। 0 टू पाई के लिए फंक्शन का वैल्यू, ये 0 टू पाई ये इंटरवल के लिए फर्स्ट वैल्यू फंक्शन का 1। ठीक है, और सेकंड इंटीग्रेशन के अंदर हमें फंक्शन का वैल्यू यहाँ पे चाहिए फॉर द इंटरवल पाई टू इंफिनिटी। तो ये पाई टू इंफिनिटी के लिए फंक्शन का सेकंड वैल्यू 0। मींस फर्स्ट इंटीग्रेशन में आपको फंक्शन का वैल्यू 1 पुट करना है, सेकंड इंटीग्रेशन में फंक्शन का वैल्यू 0 पुट करना है। अभी जो फंक्शन के वैल्यूज लिखे हैं वो एफ ऑफ एक्स के लिए लिखे हैं, वी आर यूजिंग हियर फॉर एफ ऑफ टी, तो एक्स इक्वल टू टी पुट करना होगा, बट वैल्यूज आर कांस्टेंट तो फिर कुछ चेंज नहीं होगा। अगर सपोज वैल्यू कांस्टेंट नहीं आती है तो फिर हमें एक्स को टी से रिप्लेस करना है। स्टिल यहाँ पे लिख देते हैं सिंस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 and it is equal to 0 for 0 to pi and for pi to infinity। अब इसको हमें f of t के फॉर्मेट में लिखना है, तो f of t इक्वल टू x को t से रिप्लेस करना है, तो फंक्शन के अंदर तो x है ही नहीं, तो ये 1 और 0 दोनों भी एज इट इज रहेंगे, इंटरवल एज इट इज रहेगा 0 टू पाई और इसका इंटरवल पाई टू इंफिनिटी। अब फंक्शन जो है फर्स्ट इंटीग्रेशन यहाँ पे f of t 0 टू पाई उसमें 1 यूज करना है, सेकंड एफ ऑफ टी फॉर पाई टू इंफिनिटी उसमें 0 यूज करना है। सो सब्स्टिट्यूटिंग दीज वैल्यूज इन द फंक्शन, सो एफ ऑफ एक्स इट इज विल बिकम 2/पाई इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी साइन लैम्बडा एक्स अप टू हियर एज इट इज इन ब्रैकेट इंटीग्रेशन 0 टू पाई। तो 0 टू पाई के लिए फंक्शन का वैल्यू एफ ऑफ टी का वैल्यू जो है 1 इंटू साइन लैम्बडा टी एज इट इज डी टी एज इट इज प्लस इंटीग्रेशन पाई टू इंफिनिटी एफ ऑफ टी, तो सेकंड वैल्यू ऑफ फंक्शन फॉर पाई टू इंफिनिटी इट इज 0 इंटू साइन लैम्बडा टी एज इट इज डी टी एज इट इज, और ब्रैकेट के बाहर का डी लैम्बडा ये तो लास्ट तक एज इट इज रखना है, इसमें कुछ चेंज नहीं करना है। ठीक है, नाउ इट इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इट इज इक्वल टू 2/पाई इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी साइन लैम्बडा एक्स इन ब्रैकेट 1 इंटू साइन लैम्बडा टी, फर्स्ट इंटीग्रेशन हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू पाई साइन लैम्बडा टी ओनली डी टी, प्लस सेकंड इंटीग्रेशन के अंदर तो यहाँ पे एफ ऑफ टी का वैल्यू हमने 0 पुट किया है, तो 0 इंटू साइन कंप्लीट टर्म विल बिकम 0, सो सेकंड टर्म कंप्लीट 0 हो जाएगा, इट विल बी गेट रिमूव्ड फ्रॉम हियर इनटू डी लैम्बडा एज इट इज। नाउ सॉल्व द इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स इट इज इक्वल टू 2/पाई इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी साइन लैम्बडा एक्स एंड इन ब्रैकेट, अभी इंटीग्रेशन सोल्व करना है तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन लैम्बडा टी डी टी, बाकी टर्म्स तो रिमूव हो गए, तो साइन लैम्बडा टी का इंटीग्रेशन सिर्फ आपको लेना है, तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस लैम्बडा टी
and upon coefficient of t, integration with respect to t ले रहे हैं तो upon में coefficient of t which is lambda. Bracket complete. Limits of integration 0 to pi और ब्रैकेट के बाहर का d lambda था वो as it is रहेगा. So therefore f of x it is equal to 2 upon pi integration 0 to infinity sin lambda x as it is. Now अभी हमें limits of integration यहाँ पे अप्लाई करना है. Limits of integration अपर लिमिट t इक्वल टू पाई, लोअर लिमिट t इक्वल टू 0. तो लिमिट अप्लाई करने के पहले मुझे ऐसे लगता है कि प्लस माइनस में कहीं तो भी मिस्टेक हो सकता है, तो दैट्स व्हाई ये -1 अपॉन लैम्बडा जो ब्रैकेट के अंदर है इट इज कांस्टेंट, तो उसको मैं पहले बाहर ले लेता हूँ. -1 अपॉन लैम्बडा इट इज कांस्टेंट, उसको सिर्फ मैंने ब्रैकेट के बाहर लिया. इंटीग्रेशन के बाहर नहीं कर सकते बिकॉज नेक्स्ट इंटीग्रेशन इट इज विद रिस्पेक्ट टू लैम्बडा, तो 1 अपॉन लैम्बडा को इंटीग्रेशन के बाहर नहीं ले सकते. रिमेनिंग फंक्शन इनसाइड द ब्रैकेट इट इज cos लैम्बडा t and limits are 0 to pi as it is, d lambda as it is. Now apply the limits of integration. Upper limit t equal to pi, lower limit t equal to 0. So f of x it is equal to 2 upon pi integration 0 to infinity sin lambda x as it is minus 1 upon lambda as it is. Upper limit t equal to pi, so it will become cos pi. Lower limit t equal to 0, so it will become cos 0 into d lambda as it is. Now we know that value of cos pi it is -1. So f of x it is equal to 2 upon pi integration 0 to infinity sin lambda x as it is -1 upon lambda it is also as it is. Value of cos pi it is -1 and value एक यहाँ पे एक मिस्टेक यहाँ पे हुई है. While we have applied the limit, upper limit and lower limit. So upper limit t equal to pi, हमें t equal to pi पुट करना था. हमने t equal to pi तो पुट किया, बट लैम्बडा को वहां से रिमूव कर दिया. फंक्शन इट इज cos लैम्बडा t, तो t equal to pi अगर पुट किया तो ये होगा cos लैम्बडा pi. It will become cos लैम्बडा pi. हमने क्या लिखा है? हमने सिर्फ यहाँ पे cos pi लिखा है. So I will change it. For upper limit it will become cos lambda pi minus for lower limit t equal to 0 पुट किया तो 0 into lambda सेकंड टर्म जो रहेगा वो 0 as is रहेगा. एंड नाउ अब ये cos lambda pi का वैल्यू तो हमें पता नहीं है. cos pi it is -1, बट cos lambda pi हमें पता नहीं है. keep it as it is, cos lambda pi as it is, and minus cos 0 it is 1 and d lambda as it is. So therefore f of x it is equal to 2 upon pi integration 0 to infinity sin lambda x in bracket. अभी ये -1 अपॉन लैम्बडा को नेक्स्ट ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर सकते हैं. ये हो जाएगा 1 minus cos lambda pi and upon lambda d lambda as it is, and this is the required Fourier integral of given function. It is the Fourier sine integral of given function. But ये फाइनल रिजल्ट नहीं है. Fourier integral आ गया, but it is not the final result. फाइनल रिजल्ट में हमें कुछ तो भी यहाँ पे चेंज करना है. So let's check it. What is final result? क्वेश्चन के अंदर दो पार्ट्स थे. फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज वी हैव टू एक्सप्रेस f of x as Fourier sine integral. तो ये तो हमने कर दिया. फोरियर साइन इंटीग्रल में कन्वर्ट कर दिया, एक्सप्रेस कर दिया फंक्शन को. सेकंड है कि हेंस इवैल्यूएट मींस अभी हमें ये इंटीग्रेशन का वैल्यू चाहिए. इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी 1 minus cos लैम्बडा पाई अपॉन लैम्बडा इनटू sin लैम्बडा x d लैम्बडा. अभी ये इंटीग्रेशन का वैल्यू हमें यहाँ पे लिखना है. तो इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी 1 minus cos लैम्बडा पाई अपॉन लैम्बडा, तो ये इसी पर से आएगा. जो हमने फोरियर साइन इंटीग्रल फाइंड किया वहीं पे से ही वैल्यू आएगा. सो फ्रॉम हियर 2 अपॉन पाई जो है इसको लेफ्ट साइड में ट्रांसफर कर दो. इट विल बिकम पाई अपॉन 2 into f of x. It is equal to integration 0 to infinity sin lambda x into 1 minus cos lambda pi upon lambda d lambda. So therefore value of integration 0 to infinity sin lambda x into 1 minus cos lambda pi upon lambda d lambda
इट इज इक्वल टू पाई बाय 2 इंटू एफ ऑफ एक्स। सो अब यहाँ पे हमें एफ ऑफ एक्स का वैल्यू पुट करना है, पाई बाय 2 इंटू एफ ऑफ एक्स। तो अब फंक्शन का कौन सा वैल्यू पुट करोगे, फंक्शन के तो दो वैल्यूज है। लास्ट जो प्रॉब्लम हमने सॉल्व किया वहां पे हमने फंक्शन का एक ही वैल्यू लिया था, लास्ट जो प्रॉब्लम हमने सॉल्व किया ये वाला, तो यहाँ पे हमने एफ ऑफ एक्स का एक ही वैल्यू पुट किया था e टू द पावर माइनस के एक्स। अब यहाँ पे कौन सा पुट करोगे, दोनों में से एक ही पुट करना है या दोनों पुट करना है? फंक्शन के दो वैल्यूज है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 एंड एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0। तो अब दोनों में से कौन सा पुट करना है, उसके लिए फिर से हमें लिमिट चेक करना है कि इंटीग्रेशन की लिमिट क्या है। यहाँ पे इंटीग्रेशन की लिमिट है 0 टू इन्फिनिटी, मींस फंक्शन का वैल्यू आपको पुट करना है 0 टू इन्फिनिटी के लिए, बट 0 टू इन्फिनिटी के लिए फंक्शन का सिंगल वैल्यू नहीं है, फंक्शन के दो वैल्यूज है। फर्स्ट वैल्यू इट इज फॉर 0 टू पाई, सेकंड फॉर पाई टू इन्फिनिटी, मींस अभी हमें फंक्शन के दोनों वैल्यूज को यहाँ पे पुट करना होगा। सो हाउ विल राइट इट, इसे अब ऐसा लिख सकते हैं, इट इज इक्वल टू पाई बाय 2 एज इट इज एंड इनटू वैल्यू ऑफ फंक्शन। वैल्यू ऑफ फंक्शन इट इज 1 एंड 0। 1 it is for 0 less than equal to x less than equal to pi, and 0 it is for x greater than pi, and which is the required solution of integration, which is required result. ठीक है, so in this way we can solve Fourier integral. If it is mentioned in the problem that you have to find Fourier sine integral or Fourier cosine integral, तो फिर साइन और कोसाइन ही फाइंड करना है। और अगर सपोज ऐसे लिखा आता है कि वी हैव टू फाइंड Fourier इंटीग्रल ओनली, तो फिर आपको चेक करना होगा कि आइदर गिवन फंक्शन इट इज इवन और गिवन फंक्शन इट इज ऑड, एंड आफ्टर दैट फिर आपको डिसाइड करना होगा कि कोसाइन फाइंड करना है या साइन फाइंड करना है। डायरेक्ट Fourier इंटीग्रल जो मेन है वो कहीं पे भी यूज करना नहीं है। ठीक है, सो विद दैट वी विल स्टॉप हियर। थैंक यू मच।